Good morning, everyone. We have discussed in the last video uh, some introduction about the writer William Shakespeare, his plays, sonnets, and some themes. On the basis of that, he has written so many dramas that is for all time. We have discussed yesterday or in last video. So, as far as this particular poem is concerned, this is taken from William Shakespeare's drama Julius Caesar, in which there is character Caesar, Mark Antony, Brutus, and other characters. This particular poem is a speech, funeral speech, which is given by Mark Antony. Before Mark Antony, Brutus gives speech, funeral speech, and he, in his speech, he tried to convince the people before him, the subject of Rome, that how important it was to murder or to assassinate Julius Caesar. Brutus say in his speech, Julius Caesar was very ambitious person, and his ambitious could lead towards his dictatorship. And as we know, he says to people of Rome, I love Rome very much. Who says? Brutus says. That's why, for the well-being of Roman people, I have murder. I means the Brutus and others conspirator combinedly are making some plot murder Julius Caesar, and it was very important to murder Julius Caesar because for the well-being of Roman people. And people in front of Brutus also make believe in the speech of Brutus. And there is situation in that stage, in that funeral pride, that everybody think that it is very good, it was very good act done by Brutus, that he has killed Julius Caesar. Otherwise, we might have been under the rule of Caesar, dictatorship of the Caesar, and they are very happy at that act done by Brutus. And here is the first speech is given by Brutus, and Mark Antony also gives permission from the Brutus, because here Brutus is most important person, because Brutus is the next king of Rome, and he is going to be king. That's why he is most important person. That's why he gave his speech before the Mark Antony. Mark Antony is friend of Julius Caesar. He is very much grieved from that act, that his beloved friend Caesar has been killed by Brutus and other conspirator. He has to turn the tide against the conspirator. Means he had to turn the people, the Roman people, against the Brutus and conspirator. That's why he demand the permission. He asked for permission to Brutus to deliver his speech on that funeral. On that funeral of Julius Caesar. Brutus obviously give permission to Mark Antony, because Brutus also think that Mark Antony is on the side of Brutus and other conspirator. But Brutus puts precondition that Mark Antony should not tell anything or speak anything against the Brutus, whatever has been said earlier by Brutus. समझा क्या आपको?
क्या कंडीशन है वहाँ पे कि ब्रूटस को पहले तो ब्रूटस ने स्पीच दी है कि कैसे म्हणजे यानी कि विलियम शेक्सपियर को जूलियस सीजर को मारना कितना इम्पोर्टेंट था, अदरवाइज वो डिक्टेटर होता था, हुकुमशाही होता था, वो कितना एम्बिशियस था, उसको मार के हमने रोम लोगों की कितनी यानी कि ये क्या किया है, रोम लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है, और रोम के लोग भी वो सबके ऊपर विश्वास रख देते हैं। पहले इसकी स्पीच हो गई, वो बोलता है कि जूलियस सीजर कितना ये था, एम्बिशियस था, वो डिक्टेटर होने वाला था, हुकुमशाह होने वाला था, वो रोम के लिए उसका ज़िंदा रहना अच्छा नहीं था, इसलिए हमने उसको मार दिया। और रोम के लोगों को भी लगता है कि ब्रूटस ने बहुत अच्छा किया। तो उसके बाद में मार्क एंटोनी उसको परमिशन मांगता है, उसको ब्रूटस अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पर्सन इज देयर ऑन दैट फुनरल। तो मार्क एंटोनी ब्रूटस को परमिशन मांगता है कि मुझे भी बोलना है, मुझे भी अपनी स्पीच देनी है। तो ब्रूटस को लगता है कि मार्क एंटोनी भी हमारे साइड में है, ब्रूटस के साइड में है। तो ब्रूटस उसको परमिशन देता है, लेकिन बोलता है कि यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू डिलीवर योर स्पीच, बट तुम्हें जो हमने कहा है, जो हमने क्या किया, ब्रूटस ने क्या कहा है कि सीजर इज़ वेरी एम्बिशियस पर्सन, वॉज वेरी एम्बिशियस पर्सन, इसलिए उसको मारना पड़ा। तो उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलना नहीं है, जो कुछ भी बोलना है तुम बोलो भी, लेकिन व्हाट एवर हैज़ बीन सेड बाय ब्रूटस, मार्क एंटोनी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग, वन सिंगल थिंग अगेंस्ट द थॉट डिलीवर बाय ब्रूटस। दिस इज द प्री कंडीशन, एंड नाउ मार्क एंटोनी हैज़ टू टर्न द ओपिनियन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द ब्रूटस। अभी ये सब सिचुएशन है, ध्यान में रखना है हमें कि ऐसे सिचुएशन में मार्क एंटोनी को अपना ध्येय साध्य करना है। मार्क एंटोनी का ध्येय क्या है, इसका एम क्या है कि जो लोग अभी ब्रूटस के साथ है, जो रोमन पीपल, टोटल रोमन पीपल जो ब्रूट के साथ है, वो सभी रोमन पीपल को ब्रूटस के अगेंस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ हिज स्पीच, एंड दैट इज we have to discuss Mark Antony's speech. Let us see. He start his speech. Friends, Roman countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. देखिए, friends means Roman people, जो उसके सामने, friends means जो friends, this is directed to, this is addressed to ब्रूटस एंड अदर्स कंस्पायरेटर, बिकॉज जूलियस सीजर भी मार्क एंटोनी का फ्रेंड था, ब्रूटस भी फ्रेंड है, बाकी के अदर जो वहाँ पे लोग हैं कंस्पायरेटर है, उन्होंने जो पूरा प्लान करके उसको मर्डर किया, सब फ्रेंड है। और रोमन पीपल और ये बाकी के फ्रेंड रोमन पीपल और कंट्रीमेन, लेंड मी युअर ईयर्स, लेंड मी युअर अटेन्शन, माझं थोडंसं ऐकून घ्या, लेंड मी युअर्स, मेरा थोड़ा सुनो। क्या सुनो, आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। पहले ही सेंटेंस में क्या बोलता है, उसको क्या करना है, अगर डायरेक्टली वो अगर बोलता है कि आई हैव कम हियर टू प्रूव ब्रूटस रॉन्ग, तो क्या होता था, ब्रूटस ही वहाँ पे एंटोनी को मर्डर कर देता था, अदर लोग, या क्योंकि बाकी के लोग जो है सामने जो लोग खड़े, रोमन लोग खड़े, वो भी मार्क एंटोनी को मर्डर कर देते थे। लेकिन उन्हें क्या करना है, पहले उन लोगों का विश्वास जीतना है, उन लोगों का भरोसा जीतना है, उसके बाद में अपनी बात रखनी है। इसलिए वो कहता है, इट इज़ द रेटोरिकल स्पीच, वी कैन से इट इज़ द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आई केम हियर टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं सीजर को बरी करने के लिए, बरी का मतलब क्या होता है, दफनाने के लिए आया हूँ, या उसका प्रेज, उसकी प्रशंसा करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। द इविल का मतलब क्या होता है, जो हम पाप करते हैं, द सिंस वी जनरली कमिट्स इन आवर लाइफ, दैट इज इविल, बैड, बुरे कर्म उसको हम बोलते हैं। The evil that men do lives after them. Evil, the bad deeds that we generally do in our life, that remain after them. मरने के बाद भी वो लोगों को ध्यान में रहते, जो हम, ये जनरली ऐसा होता नहीं, जनरली हम समाज में अगर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता, मरने के बाद में लोग उसके अच्छे कर्म याद करते हैं, बुरे कर्म भूलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको क्या करना है कि पर्टिकुलरली जूलियस सीजर के बारे में बात कर रहा है एंटोनी, तो वो क्या बोलता है
कि द मेन generally particular, he is not saying particularly about the Julius Caesar, he is saying the general thing that generally happens in society. The evil that men do lives after them, जो भी हम बुरे कर्म करते हैं वो हमारे मरने के बाद में भी लोगों के ध्यान में रहते हैं. And the good is oft entered with their bones. यानी जो कुछ भी हम गुड यानी कि अच्छे कर्म करते हैं, दैट इज़ ऑफ्ट का मतलब यहाँ पे आर्केक वर्ड है ऑफ्ट. तो थोड़ा ये मेंटेन करने के लिए यानी कि रिदम मेंटेन करने के लिए जनरली विलियम शेक्सपियर उसका ऑफ्ट ऑफन के इंस्टेड ऑफ ऑफन ही जनरली यूज्ड ऑफ्ट देयर. ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन, बार बार. द गुड इज ऑफ्ट एंटर्ड, एंटर्ड मतलब प्रवेश करना या उसके साथ चला जाना. विद देयर बोन्स, विद देयर बोन्स म्हणजे बोन्स का मतलब अपनी हड्डियाँ. हड्डियाँ का मतलब जब एक आधा आदमी मरता है तो उसको हम दफनाते हैं. दफनाने के बाद में क्या होता है, उसकी वहाँ पे हड्डियाँ ही रहती है. तो जनरली इसका मीनिंग क्या है कि जो आदमी अच्छे कर्म करता है वो लोग भूल जाते हैं, सॉरी वो जो बुरे कर्म करता है वो उसके बाद में भी लोग याद रखते हैं. लेकिन जो जो अच्छे काम हम करते हैं, जो हमारे जैसे हमारे हमको जब दफनाते हैं मरने के बाद में हमारे बोन के साथ वो हम जैसे दफना जाते हैं, हमें सब लोग भूल जाते हैं, वैसे ही जो हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी हमारे बोन्स के साथ हमारे अंदर गड़ जाते हैं, उसको कोई याद नहीं रखता. सो लेट इट बी विथ सीजर, वैसा ही सीजर के साथ होने दो. लेट इट बी विथ सीजर मीन्स वैसा ही सीजर के साथ होने दो. जनरली व्हाट हैपन्स रियली, द मेन एनी पर्सन डू, द गुड एनी पर्सन डू इन हिज लाइफ जनरली often are buried with their bones. But whatever sins he commits in his life, whatever bad deeds he do in his life, generally people keep in mind that the same thing should happen with the Caesar. वैसा ही सीजर के साथ होना चाहिए, क्योंकि सीजर वैसा ही था, उन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, इसलिए उसके कर्म को, अच्छे कर्मों को भूल जाओ, उसके बुरे कर्मों को याद रखो. ऐसा ही सीजर के साथ होना चाहिए. द नोबल ब्रूटस, नोबल का मतलब क्या आता है, बहुत अच्छा आदमी. द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू, हैथ का मतलब होता है हैज़, हैज़ HAS. द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस. क्या कहा है नोबल ब्रूटस ने? ब्रूटस कौन है? सीजर का मर्डरर है. पहले बात कि वो सीजर और ब्रूटस वगैरह सब फ्रेंड थे, एक साथ में अपनी लड़ाई वगैरह करते थे, वो सब करते थे. तो क्या बोलता है मार्क एंटोनी, द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस. एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षी. उनकी बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा थी, हिटलर जैसी. हिटलर की क्या थी महत्वाकांक्षा? कि उनको प्योर रेस मेंटेन करना था. इसलिए उन्होंने क्या किया कि पूरे जो ये थे ज्यू लोग थे पूरे का पूरा खत्म किया था. वो उसकी एम्बिशंस थी. तो वैसे ही एम्बिशंस में भी सीजर की थी. ऐसा किसने बोला है? ब्रूटस ने बोला है. तो नोबल, तो ब्रूटस को, मार्क एंटोनी ब्रूटस को क्या मर्डरर बोल रहा है क्या? नहीं, उसको नोबल बोल रहा है. नोबल का मतलब बहुत अच्छा आदमी, बड़ा आदमी, यानी कि एक बेनोवेलेंट, जो सबका अच्छा करता है, ऐसा आदमी. द नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वाज एम्बिशियस. वो लोगों को बता रहा है कि जैसा कि आपको बताया है किसने? नोबल ब्रूटस ने, कि सीजर क्या था? एम्बिशियस था. एंड इफ इट वेयर सो इट वाज अ ग्रीवियस फॉल्ट. यानी ये अगर दोष किसमें था? जूलियस सीजर में था, तो ये कैसा था? इट वाज द ग्रीवियस फॉल्ट. ग्रीवियस का मतलब बहुत ही भयंकर, तुमको नाश करने वाला, ऐसा वो फॉल्ट था, ऐसा वो दोष उसमें था. एंड ग्रीवियसली हैथ सीजर आंसर्ड इट. यानी वैसे ही भयंकरता से, वैसे ही बहुत बड़े यानी कि क्रूरता से उसने क्या किया है? सीजर हैथ आंसर्ड इट. वैसे ही क्रूरता से, वैसा ग्रीवियस फॉल्ट उसमें था. कौन सा फॉल्ट था? अकॉर्डिंग टू ब्रूटस कि जूलियस सीजर क्या था? बहुत एम्बिशियस था. तो वो सीरियस फॉल्ट था, वही सीरियसनेस से, वही ग्रीवियसली, वही डेंजरसली ही वाज मर्डर. means he has answered it. Means the Brutus has murdered Julius Caesar. Here under the leave of Brutus, leave का मतलब क्या आता है? परमिशन. with the permission of Brutus and the rest means the Brutus के साथ जो बाकी के लोग हैं, अधिकारी, वो जहाँ पे जो बाकी के अधिकारी लोग हैं, उनके परमिशन से
फॉर ब्रूटस इज मैन, फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। और मुझे यहाँ पे बोलने की परमिशन कितने दी है? ब्रूटस ने दी है और बाकी के लोगों ने दी है ब्रूट के साथ में जो है, क्योंकि परमिशन लेना बहुत ही अनिवार्य था, बिकॉज ब्रूटस इज ऑनरेबल मैन। एकदम ही प्रामाणिक उसको बोलते हैं, एकदम प्रामाणिक मनुष्य कौन है? ब्रूटस है, इसलिए उनकी परमिशन लेनी है। एंड सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। सो आर दे ऑल मीन्स जिन्होंने सीजर का मर्डर किया है वो सभी क्या है? ऑनरेबल है, बिकॉज जूलियस सीजर का ग्रीवियस फॉल्ट था क्या? अकॉर्डिंग टू ब्रूटस एंड अदर मैन अदर कंस्पायरेटर, कि ब्रूटस क्या था? सॉरी, अपना सीजर क्या था? एम्बिशियस था, एंड एम्बिशन वाज द ग्रेट फॉल्ट, ग्रीवियस फॉल्ट in Caesar, and because of that fault he had been murdered by Brutus and others conspirator. That's why they have murdered Caesar, they have done the noble thing in their life, and that's why we should consider Brutus and other conspirator as a honorable man too. And come I to speak इन सीजर्स funeral, एंड उनके परमिशन से मैं अभी सीजर का funeral हो रहा, उनका जो दफन विधि हो रहा, उनके funeral में क्या मैं बोलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मुझे 2-4 शब्द सीजर के बारे में बोलना है। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। एंड आप सबको पता है कि सीजर क्या था? मेरा फ्रेंड था, मेरा विश्वासु था, एंड जस्ट म्हणजे मेरे साथ वो हमेशा प्रामाणिक रहा है, मुझे कभी ईजा करने की, मुझे कभी चीट करने की उसने कोशिश नहीं की। ऐसा प्रिय व्यक्ति कौन था? मेरा दोस्त, मेरा फेथफुल कौन था? सीजर था। लेकिन वही सीजर को किसने मारा है? ब्रूटस ने मारा है और बाकी के लोगों ने मारा है। क्यों मारा है? क्योंकि वो सोचते थे कि सीजर क्या था? एम्बिशियस था, वो बहुत महत्वाकांक्षी था, और उनकी महत्वाकांक्षा रोम के लिए बहुत ही खराब सिद्ध होने वाली थी। इसलिए उन्होंने किसका मर्डर किया? सीजर का मर्डर किया, और मर्डर करके उन्होंने रोम के लिए बहुत अच्छा काम किया। इसलिए हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं? ऑनरेबल कंसीडर करते हैं, उन्हें हम अच्छा आदमी मानते हैं। ब्रूटस को भी अच्छा आदमी मानते हैं, उनके साथियों को भी हम अच्छा आदमी मानते हैं, और उनको हम क्या करते हैं? उनकी हम क्या मान सम्मान उनका करते हैं। लेकिन उनके ही परमिशन से मैं यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लिए आया हूँ। यहाँ पे ये क्या है? इवेंट कौन सा है कि यहाँ पे जूलियस सीजर का दफन विधि हो रहा है। वही दफन विधि में मैं मार्क एंटोनी के बारे जूलियस सीजर के बारे में 2-4 से यहाँ पे शब्द कहने के लिए आया हूँ। ही वॉज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था, मेरा एकदम विश्वासु था, उन्होंने कभी मुझे चीट नहीं किया, वो मेरे साथ हमेशा क्या रहा? प्रामाणिक रहा है, वो हमेशा मेरे साथ वो अच्छा ही रहा है। ऐसा आदमी के लिए मैं 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ। So it is enough for this video. The next lines we will discuss in next video. Thank you.